Hello future officers, I welcome you once again to the sprint series organized by us for your upcoming CDS examination. So today I am here with your 6th session of English and we will be discussing about phrasal verbs as well as parts of speech. So this has been asked by a lot of you. So I have brought this session for you all to understand what is the meaning of these things and how you can solve the questions effectively, right? So without wasting much time, let us simply jump to our questions. We will begin the session with phrasal verbs. Now students, before we begin with the questions, I want to explain what are phrasal verbs. So phrasal verbs are made up of two words, that is phrase plus verb. Phrase plus verb, right? So verb आपको पता है क्या होता है? Verb हिंदी में जब आप बोलते हैं ना, काम करने को verb बोलते हैं. So your work or your actions are verb, right? So words which describe your action are called phrasal verbs. Now as we know, a sentence is made up of various elements. The most important of them are subject plus object, right? A sentence is a relation of a subject and an object, और उस relation को explain करने के लिए हम उसमें verbs की help लेते हैं, so that we explain what the subject is doing with respect to the object, right? So phrasal verbs are nothing but verbs which describe these actions in a more specific manner, right? So today we will be discussing about these. So let us straight away start doing our questions so that we are able to understand how to go about solving phrasal verbs. It's not really a very difficult exercise. All it takes is a little bit of your logical thinking. So it won't take a lot of your effort, right? So let us start with it. Now look at the first question. That song has already dashed $7 million, right? So उस song ने already 7 million कमा लिए हैं. This is a fact. ये आपको बताया गया है, right? Now look at the options. हम पहले options के मतलब समझेंगे. Made in, right? This is a phrasal verb saying made in. Made in का मतलब होता है जहाँ पे उसकी production हुई हो. It is talking about production or origin, right? Now made up is a phrasal verb which is used for false actions or false facts. जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कोई झूठ बोल रहा है तो ही स्पीकिंग अ मेड अप स्टोरी. ऐसा सच में कुछ है नहीं, ये मेड अप है, बनाई गई है उसके द्वारा, नकली है ये, समथिंग विच इज़ फॉल्स. एंड देन फाइनली यू हैव द वर्ड मेड विच सिंपली मीन्स किसी चीज़ को बनाना, राइट? टू मेक समथिंग. मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, राइट? सो टू मेक समथिंग इज मेड. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन दैट वी हैव बीन गिवन, मेड इन डज नॉट फिट इन बिकॉज इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द सॉन्ग. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि उसने 7 मिलियन कमा लिए हैं, ऐसा उसने ऑलरेडी कर लिया. मेड अप इज़ फॉल्स बट दिस इज़ अ फैक्ट. तो मेड अप भी नहीं और मेड इन भी नहीं. वी विल गो विद मेड. दैट सॉन्ग हैज़ ऑलरेडी मेड 7 मिलियन, राइट? उसने उतने पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं. ये उसकी प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ये किसी फॉल्सहुड की बात नहीं हो रही, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू योर सेकेंड क्वेश्चन. यू कैन डैश द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. यू कैन डैश वर्ड्स इन डिक्शनरी. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग वर्ड्स इन योर डिक्शनरी. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. फर्स्ट इज लुक इन. लुक इन का मतलब होता है कि आप से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लुक्स इन टू अ मैटर. उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, उसको ढूंढना, टू फाइंड आउट समथिंग, राइट? देन बी इज लुक आउट. लुक आउट इज गिवन एज अ वार्निंग साइन. इट इज़ अ वार्निंग साइन. एंड देन लुक अप. लुक अप इज टू फाइंड समथिंग. So we look up for the words in a dictionary. We don't look in, we don't look out. We look up for the words in a dictionary, right? जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो तो you look up for that. Now look at the third question. Sorry I am late. My car dash petrol. Sorry I am late. Late वो तभी हुआ होगा अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, है ना? So ख़त्म होने की बात हो रही है. सबसे पहला है ran in. Ran in is when you meet someone. I ran into an old friend in the market today. मुझे मेरा एक पुराना दोस्त आज मार्केट में अचानक से मिल गया. Ran in is meet. Ran away ये तो मतलब आपको सुन के ही पता लगता है, when you भाग जाना कहीं से, to escape from somewhere, that is ran away.
रैन आउट ऑफ, जब ख़त्म हो जाता है कुछ, व्हेन यू गेट रिड ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस केस में वी विल गो विद रैन आउट ऑफ. माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो गया इसलिए मैं लेट हो गया. रैन इन इज मीट एंड रैन अवे इज एस्केप. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ दीज फ्रेजल वर्ब्स. एंड आज की क्लास में डोंट जस्ट लिसन टू दी ऑप्शन जो आंसर है, प्लीज़ लुक अप टू दी ऑप्शंस जो उसके साथ में दिए गए हैं वो भी, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग उसके मतलब भी, एंड दे विल बी मोर यूजफुल. यू माइट फाइंड अ सेंटेंस जिसमें रैन इन आपको यूज़ करना पड़े. सो अगर जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ऑल द योर ऑप्शंस सो दैट यू आर एबल टू यूज़ देम एज एंड व्हेन नेसेसरी. ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा रैन आउट ऑफ. नाउ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस. दोज ब्राइट येलो फुटबॉल बूट्स रियली, वो जो तुमने पहने हुए हैं पीले रंग के जूते वो अलग से नज़र आते हैं. इस सेंस का मतलब यहाँ से इस सेंटेंस का ये मतलब निकलेगा. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. पहला है स्टैंड अप. स्टैंड अप होता है व्हेन यू टेक अ स्टैंड फॉर समथिंग, व्हेन यू स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग. राइट, जो हमारे लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, दे स्टूड अप फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया. स्टैंड डाउन होता है जब आपकी कोई बेइज्जती कर देता है. राइट, व्हेन यू आर रेप्रीमांडेड, दैट इज व्हेन यू स्टैंड डाउन. एंड फाइनली यू हैव स्टैंड आउट. स्टैंड आउट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ यूनिक, अ वेरी यूनिक थिंग, अलग से नजर आए जो. सो द आंसर ऑफ ए फोर्थ क्वेश्चन विल बी सी पार्ट, स्टैंड आउट. दोज ब्राइट येलो बूट्स, फुटबॉल बूट्स रियली स्टैंड आउट, वो अलग से ही नज़र आ रहे हैं उसके बूट. राइट, उसमें किसी के स्टैंड लेने की कोई बात नहीं है. नोबडी हैज़ रेप्रीमांडेड हिम, नोबडी हैज़ सेंट एनीथिंग टू क्रिटिसाइज हिम. राइट, क्रिटिसाइज के टाइम पे भी यूज़ वर्ड लाइक स्टैंड डाउन. सो यहाँ पे वी विल यूज़ द वर्ड स्टैंड आउट. लुक एट द फिफ्थ वन. ओ नो द बिल्डिंग्स लिफ्ट हैज़ डैश अगेन. बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई है, हमें उसको फिल इन करना है अंदर. राइट, ब्रोकन अप. ब्रोकन अप इज व्हेन यू गेट अवे फ्रॉम समवन. ये आपको पता ही होगा. सो when you are with someone and then you go away from that person, that is when you break up. Right, you move away from that person, you're no more in contact. Then broken down. Broken down is, it is related more towards your emotional sense. Emotional sense, like you break down, somebody breaks down, that means they start crying over something which is bothering them. ब्रोकन डाउन का मतलब फिजिकली भी होता है, लाइक द मशीन ब्रोक डाउन, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया है, टू स्टॉप परफॉर्मिंग. राइट, ये भी ब्रोकन डाउन का ही मतलब है. नाउ लुक एट ब्रोकन इन. ब्रोकन इन का मतलब होता है व्हेन यू एंटर इनटू सम प्लेस विदाउट परमिशन. जैसे द थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस एंड लूटेड एवरीथिंग. बिना परमिशन के ही घुसते हैं ना चोर आपके घर के अंदर. So broken in is when somebody enters inside some place without permission. So in the fifth question the answer will be broken down. Right, the lift had stopped performing, जो मैंने अभी आपको मतलब बताया, stopped performing, इसलिए लिफ्ट खराब हो गई है. So oh no, the building's lift has broken down again, it has stopped performing again. Now look at the sixth one. Our babysitters really good at dash with our kids, है ना. सो लुक एट द ऑप्शंस. पहले आप सी वाला देखो, लुकिंग डाउन अपॉन. लुकिंग डाउन अपॉन इज व्हेन यू फील दैट समबडी इज इन्फीरियर टू यू. कोई आपसे इन्फीरियर है, यू लुक डाउन ऑन दैट पर्सन, यू डोंट फील गुड अबाउट दैट पर्सन, है ना. आपको वो अच्छा नहीं लगता इंसान जिसको आप समझते हो कि ये मुझसे इन्फीरियर है. सो दैट इज लुकिंग डाउन अपॉन. लुकिंग इन टू, अगेन हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा है, लुक इन टू अ मैटर व्हेन यू इन्वेस्टिगेट समथिंग. एंड फाइनली लुकिंग आफ्टर, जब आप किसी की देखभाल करते हो, है ना. सो बेबी सिटर भी देखभाल ही करता है. सो आवर आंसर विल बी ए, दैट इज लुकिंग आफ्टर. व्हेन यू लुक आफ्टर समबडीज हेल्थ, यू लुक आफ्टर योर वर्क, आप किसी चीज़ की देखभाल करते हो, उसको नर्चर करते हो, दैट इज लुकिंग आफ्टर. राइट, नाउ लुक एट द सेवेंथ क्वेश्चन. द बस वॉज नियरली फुल सो इट वॉज डिफिकल्ट टू डू वॉट. इसमें आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, दैट इज ए एंड सी, गेट इन एंड गेट ऑन. गेट आउट का मतलब तो आपको पता ही है, व्हेन यू हैव टू लीव सम प्लेस, दैट इज गेट आउट. लेकिन बस भरी हुई है तो गेट आउट का तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता. सो दिस इज नॉट द ऑप्शन. नाउ गेट इन एंड गेट ऑन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. व्हेन यू हैव टू अब जब भरी हुई बस में आपको चढ़ना होता है ना, तो दैट इज गेट ऑन.
You get on to a bus. The bus was nearly full, so it was difficult to get on. Get in is not related to bus. Get in is not related to your physically entering some place, right? Get in is when you, like, say for example, you say the sentence, so and so person got into this university after clearing the exam, right? उसका आपकी फिजिकल प्रेजेंस से इतना लेना देना नहीं है जितना उसका आपकी इंटेलेक्चुअल लुकआउट से है. So in this case we will not go with get in, we will go with get on. You get on to a bus. Okay. Now look at the 8th question. If the TV isn't loud enough, turn it dash a little. Turn it in. Turn in का क्या मतलब होता है? Turn in. What is the meaning of turn in? Turn in means to show an appearance. Your appearance. आप कहीं पे जाते हो ना, to show up. To show up is to turn in. The thief turned into the police station. मतलब उसने अपने आप को पुलिस स्टेशन में जाके हिरासत में देने का जो फैसला है वो किया है ना. So to turn in, you turn in yourself, you show up. Then turn up. Turn up का मतलब होता है जो हम यहाँ पे यूज़ करें, the answer of this question. अगर टीवी जो है आपको सुनाई नहीं दे रहा, so turn it up a little, उसकी वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ी सी. Turn down. To turn down something, turn down का मतलब क्या होता है? When you refuse something. He turned down the offer to become the MD. Refusal, that is turn down. So in this case our option will be turn up. Turn it up a little. ठीक है. Look at your 9th question. Our plane dash 30 minutes late. Now took in, पहले आप C option देखो. Took in का मतलब होता है, I'll help you understand this by speaking a sentence. So the sentence is the shelter took in battered children. जो शेल्टर था उसने जो गरीब बच्चे थे या जो सड़क पे घूम रहे थे बच्चे, उनको अपना लिया. टुक इन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना है ना. दैट इज टुक इन. देन टुक अप. आई टुक अप दिस जॉब. दैट मीन्स यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एंड फाइनली यू हैव टुक ऑफ. किसी चीज़ के लिए चलना, जर्नी से रिलेटेड होता है टुक ऑफ. सो आवर प्लेन टुक ऑफ 30 minutes लेट. ये तो आपने कई बार एयरपोर्ट्स पे सुना भी होगा, राइट. नाउ लुक एट द 10th क्वेश्चन. लेट्स डैश दैट ओल्ड बॉक्स, वी डोंट नीड इट. नाउ टू थ्रो अप मीन्स टू वॉमिट. इन लिटरल सेंस इट मीन्स टू वॉमिट. सो सम पर्सन थ्रोज अप मतलब कि उसने वॉमिट किया है, राइट. टू थ्रो इन इज वेन यू इन्वाइट समथिंग इनसाइड. लेकिन इन्होंने बोला वी डोंट नीड इट, सो इट विल बी थ्रो अवे. लेट्स थ्रो अवे दैट ओल्ड बॉक्स बिकॉज वी डोंट नीड इट, राइट. सो दीज वर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्रेजल वर्ब्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक आउट अ मीनिंग एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू ओवर हियर. क्योंकि कई बार आपको ऑप्शंस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा. मे बी सेम क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. So you should understand all the options as well, right? Now moving to the second part of our class today, that is parts of speech. Now what are parts of speech? Parts of speech are used to enhance the sentence. Enhance our sentence, right? किसी भी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, योर एडवर्ब, देन योर एडजेक्टिव, right, interjections, your preposition, and then your conjunctions, etc., right. So we use these parts of speech to enhance our sentence, right. So today in this exercise we will try to identify these parts of speeches. मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब भी समझाते हुए चलूँगी, सो दैट जब आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना हो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, राइट. Now look at the first question. I always go to the park on the weekends. So हमें park का part of speech बताना है. Now आप options को देखो. What is an adverb? Adverb देखो verb word आ रहा है ना इसमें. Adverb is something which enhances your verb. Enhances the verb. जो verb को enhance करता है, उसको modify करता है, उसको हम adverb बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे verb है go to the park. गो टू से तो रिलेटेड नहीं है एडवर्ब,
एडवर्ब से रिलेटेड नहीं है ना ये, अगर गो टू के साथ कोई वर्ड रिलेटेड होता तब हम एडवर्ब को यूज़ करते. सो दिस इज़ नॉट एन एडवर्ब. एडजेक्टिव इज समथिंग विच इन्हांसेस द नाउन. इन्हांसेस द नाउन. यहाँ पे नाउन क्या है? बाय द वे, नाउन इज योर पार्क. योर आंसर इज नाउन. What is a noun? A noun is a word which is used to identify or which is used to describe a place, thing, person or an animal. इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों की हम यूज़ करते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे पार्क क्या है? पार्क इज़ अ प्लेस, जगह का नाम है ना, आप यहाँ जाते हो. सो दैट इज़ अ नाउन. पार्क इज़ अ नाउन इन दिस केस. इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता अगर हम बोलते ही ऑलवेज गोज टू द स्मॉल पार्क, और अगर ये स्मॉल अंडरलाइंड होता तो ये एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये हमारे नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन कैसा है. स्मॉल है, लार्ज है, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल, इट्स अगली. ऑल ऑफ दिस इज एडजेक्टिव, राइट. नाउ लुक एट योर सेकेंड क्वेश्चन. ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट. नाउ व्हाट आर विंटर डेज? विंटर डेज आर नाउन. विंटर डेज आर नाउन. और हमारा जो वर्ड हमें दिया गया है वो हमारे नाउन के बारे में बता रहा है. नाउन कैसा है? ठंडी सर्दी के दिनों में, है ना. तो डिस्क्राइब करे, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर नाउन, सो इट विल बी एडजेक्टिव. दिस इज एन एडजेक्टिव ऑन अ कोल्ड विंटर डे, राइट. लुक एट योर थर्ड क्वेश्चन. हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट येस्टरडे. तुम्हारे दोस्त ने कल कितने हॉट डॉग खाए. खाना क्या है? इट इज़ एन एक्शन. दिस इज़ एन एक्शन. एक्शन इज़ नथिंग बट अ वर्ब. जब हम कोई काम करते हैं उस काम को हम वर्ब बोलते हैं. इसी काम को, जो चीज़ डिस्क्राइब करती है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस होता हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड क्विकली ईट येस्टरडे. क्विकली ईट येस्टरडे, अगर यहाँ क्विकली शब्द का यूज़ हुआ होता तो वो क्विकली एडवर्ब होता, क्योंकि वो उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कि उसने कैसा एक्शन किया, राइट. सो दैट वुड हैव बीन आवर एडवर्ब. बट अभी हमने ईट का स्पीच बतानी थी, दैट इज वर्ब. लुक एट अ फोर्थ क्वेश्चन. हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज एज ही इज अ पायलट. फ्लाइंग क्या है? इट इज अगेन एन एक्शन. फ्लाइंग इज एन एक्शन एंड वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन, राइट. प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अ प्रोनाउन. हाउ? यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है हर इज अ प्रोनाउन. हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज. इट कुड हैव बीन लाइक अनीता डजंट मीट हर फादर फ्रीक्वेंटली बिकॉज हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज एज ही इज अ पायलट. तो यहाँ अनीता जो है उसका प्रोनाउन है हर. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, राइट. नाउ लुक एट योर फिफ्थ क्वेश्चन. I usually study in the library an hour after the class. यहाँ पे usually क्या है? Usually is describing what? It is describing her action of studying. I usually study in the library. तो जो usually के बाद exactly बाद जो word आ रहा है that is verb. That means this word is describing our action. तो जो word हमारा action describe करता है वो क्या होता है? That is an adverb. उसको हम adverb बोलते हैं. So this is an adverb. Look at your sixth question. Please finish the homework. Homework क्या है? This is our object. Object है ना ये. Place, thing, animal or person. Homework is a thing. This is a thing, right? So this will be a noun. Now look at the seventh one. Wow, you have got a great score. Wow क्या है? ये आपकी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है. दिस इज डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर फीलिंग. वर्ड्स लाइक वाओ, ब्रावो, अलास, राइट. ये सारी वर्ड्स क्या हैं? दीज आर इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब योर फीलिंग्स. राइट. जैसे वाओ हो गया, ब्रावो हो गया, अलास हो गया. अलास इज अ नेगेटिव फीलिंग. सो जो भी फीलिंग है आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इंटरजेक्शंस की मदद लेते हैं. सो दिस इज एन इंटरजेक्शन. वाओ इज एन इंटरजेक्शन. ठीक है. लुक एट द 8th सेंटेंस. द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड. द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड. नाउ अंडर इज आवर क्वेश्चन. इसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अंडर का.
ना लुक एट योर ऑप्शंस। पहले आप ऑप्शंस को समझो। नाउन तो आपको मालूम है ये होगा नहीं, क्योंकि आपको नाउन का मतलब पता है। अगर बेबी या बेड अंडरलाइंड होता तो वो नाउन होता, दिस इज़ नॉट अ नाउन। अब आप प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का डिफरेंस समझो। व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन शब्द में ही आपको दिख रहा है, इट इज़ प्रीपोजिशन। किसी चीज़ की जो पोजिशन को डिस्क्राइब करे उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, राइट। किसी चीज़ की पोजीशन को जो शब्द डिस्क्राइब करता है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। और कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जंक्शन शब्द से आया है, समथिंग विच जॉइंस टू फ्रेजेस। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइंस एनी टू डिफरेंट सेंटेंसेज और फ्रेजेस टुगेदर, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में हमें सेंटेंस दिया है, द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड। ये उसकी पोजीशन बता रहा है ना, बेड के नीचे है बेबी, सो दैट विल बी आर प्रेपोजिशन बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग द प्रेपोजिशन। पोजिशन प्रेपोजिशन होते हैं जैसे ओवर, इनटू, अंडर, बिसाइड, ये सब आपके प्रेपोजिशन हैं, राइट। कंजंक्शन क्या होंगे आपके? ऑल्दो, येट, दो, ये सब आपके कंजंक्शन है क्योंकि ये दो शब्दों को ज्वाइन करते हैं। एंड इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। नाउ लुक एट योर 9th क्वेश्चन, देयर इज़ अ पार्टी नेक्स्ट वीक दो आई डोंट थिंक आई कैन गो। अब यहाँ पे क्या है? दो सेंटेंस हैं, देयर इज़ अ पार्टी नेक्स्ट वीक एंड द सेकेंड सेंटेंस इज आई डोंट थिंक आई कैन गो। उन दोनों को ज्वाइन किया गया है बाय दिस वन वर्ड दैट इज दो। सो अभी हमने पढ़ा कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेज और फ्रेजेस टुगेदर। यहाँ पे दो क्या है? कंजंक्शन है, राइट। नाउ लुक एट योर 10th क्वेश्चन, शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। यहाँ पे क्या है? क्विकली क्या है? क्विकली इज योर एडवर्ब बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग हर एक्शन। उसने फटाफट अपना बैग बांधा और चली गई। क्विकली इज द डिस्क्राइबिंग द एक्शन, सो इट विल बी द एडवर्ब। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, एडवर्ब्स यूजुअली एंड बाय ly। शी ब्यूटिफुली रोट इट, राइट। शी क्विकली पैक्ड हर लंच। ही स्लोली मूव टूवर्ड्स द स्कूल। तो ly से एंड होने वाले सेंटेंसेज आर एडवर्ब्स, तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका ये भी है, राइट। सो विद दिस वी एंड आवर क्लास। इफ यू हैव any doubts you can contact us on WhatsApp, the number is given over here. You can also join our Telegram channel for latest updates. The link of the Telegram channel is given in the description box. And students, I hope with this you have understood how to solve your parts of speech as well as your phrasal verbs, right? So I hope your preparation is going well. I wish you all the best for all your upcoming examinations and I hope you do well in them. Thank you so much.